ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی, میں ان کی عزت کرتی ہوں, لیکن انہوں نے, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی. BISP دیتا ہے 10,000 روپیہ, مریم نواز نے ایک ایک سیلاب زدگان کو یا ایک ایک سیلاب سے متاثرہ شخص کو جو اپنا گھر بیٹھا ہے, کھو بیٹھا ہے, اس کو مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا, اس کو مریم نے نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو. 5-5, جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا, جن کے گھر گر گئے, جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا, جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا, وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے سیلاب پر سیاست کی. صدر زرداری اور بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کو سمجھائیں, صوبے کی طرف کسی کو میلی آنکھ اٹھانے نہیں دوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان میں الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا BISP 10,000 دیتا ہے, مریم نواز 10 لاکھ روپے دیتی ہے. جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا وہ 10,000 روپے کا کیا کرے گا؟ پاکستان کب تک دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے گا؟ NFC کے کھربوں روپے عوام کی فلاح پر خرچ ہوں گے. مریم نواز نے مخالفین کو مشورے اپنے پاس رکھنے کی صلاح دے دی. ملک بھر میں زرعی شعبے اس سیلاب کے بعد بہت متاثر ہوا ہے. نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے, اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے. کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. جہاں تک آئینی ترمیم کے سوال ہے, نہیں, آج تک مسلم لیگ نواز نے مجھے کوئی نہ ڈرافٹ شیئر کیا, نہ پروپوزل سامنے آیا ہے. الیکشن کے دنوں میں نون لیگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تعریفیں کرتی تھی. پتہ نہیں کیوں نون لیگ کی حکومت نے یو ٹرن لیا. بلاول بھٹو کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا سیلاب سے پنجاب میں تاریخی نقصان ہوا, بر وقت امداد کی اپیل کرتے تو متاثرین کی زیادہ مدد کر سکتے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کی مدد کی جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل سیاسی ہے. بھارت دہشت گرد تنظیموں کو مالی مدد پہنچاتا ہے. اناؤنسمنٹس کی گئی لاؤڈ سپیکرز کے ساتھ کہ آپ ہر طرف سے کارڈن ہیں, تو آپ کو سرنڈر کرنے کا رائٹ ہے کہ اگر آپ ریاست کے سامنے یا ریاستی فورسز کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو دا آپشن. جو ہی وہ لاؤڈ سپیکر پہ اناؤنسمنٹس ہوئیں, فوراً وہاں سے فائرنگ سٹارٹ ہو گئی, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں FC کا جو ایک جوان ہے وہ شدید زخمی ہوا, اور پھر ریٹیلیشن ہوئی. اس ریٹیلیشن میں یہ 2 جو ٹیررسٹ تھے جن کا میں نے ذکر کیا, زبیر اور نثار کا, وہ موقع پہ مارے گئے اور جہانزیب نے سرنڈر کر دیا. یہ بات طے ہے کہ بلوچستان میں اب جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک اکٹھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بندوق اٹھانے والے ملک توڑنا چاہتے ہیں. دہشت گرد تنظیموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ روز اہم کارروائی کی. زبیر اور نثار نامی دہشت گرد ہلاک ہو گئے. تیسرے دہشت گرد جہانزیب نے سرنڈر کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس. کہا دہشت گردوں اور فورسز میں 2 گھنٹے تک فائرنگ جاری رہی. کسی کو ریاست کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے. بھارتی کپتان سوریا کمار کی سیاسی گھٹیا حرکت. انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ نے سوریا کمار یادو کے خلاف PCB کا موقف تسلیم کر لیا. سوریا کمار یادو کے خلاف ICC کی جانب سے کارروائی کا امکان ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ICC کو خط میں شکایت کی تھی. سوریا کمار 14 ستمبر کو کھیل میں سیاست لائے. میچ کے اختتام پر پہلگام واقعے اور آپریشن سندور کا ذکر کیا. سوریا کمار نے کھیل کی شہرت کو نقصان پہنچایا. سوریا کمار کے خلاف سخت کارروائی ضروری ہے. ایشیا کپ کے فائنل تک رسائی. پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ سیمی فائنل کی صورت اختیار کر گیا. دونوں ٹیمیں 7:30 بجے آمنے سامنے ہوں گی. سری لنکن ٹیم ابتدائی 2 میچز میں شکست کے بعد پہلے ہی ایونٹ سے باہر ہو چکی. شاہین آفریدی کا کہنا ہے ایشیا کپ کا فائنل ہم ہی جیتیں گے.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात होगी। अमरीकी सदर ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम करेंगे। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका में अहम मुलाकातें जारी। शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, तिजारत, इलाकाई और कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के आज़म का आदा। बिल गेट्स ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सैलाब में बिल गेट्स फाउंडेशन की इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। भारतीय हुकूमत के जुल्म जबर के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। लद्दाख में अवाम सड़कों पर निकल आए। लद्दाख के मौजूदा कशीदा हालात काबू से बाहर। शहरियों ने हुकूमती जमात, बीजेपी के मरकजी दफ्तर और पुलिस वैन को नजर आतिश कर दिया। मोदी सरकार ने लद्दाख में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। पंजाब में सैलाब से ज़राअत और देही मईशत बर्बाद हो गई। सूबे में 34 लाख एकड़ ज़रई अराजी डूबने से ग़िज़ाई किल्लत का खदशा। चावल, गन्ने और कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सब्जियों की 44% फसलें भी तहस नहस। बड़े पैमाने पर फलों के बागात भी सैलाब की नज़र। मुआशी तरक्की के अहदाफ मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। किसान इत्तेहाद का हुकूमत से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं सैलाब से होने वाले किसानों के नुकसान का अजाला किया जाए। 50 लाख एकड़ पर अब भी सैलाब का पानी खड़ा है। हुकूमत ने तामुन ना किया तो नए सीजन में गंदम काश्त नहीं होगी। वर्ल्ड बैंक पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली में ताउन और मदद फराहम करेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मरियम औरंगजेब ने कहा वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब की पेशगी इतला का जदीद निज़ाम नस्ब करेंगे। डेढ़ साल में चाहे वो मार्का हक हो, चाहे वो आपकी मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं माशियात के, उसमें आपकी जो कामयाबियां हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इसी से आपको हौसला मिलना चाहिए। IPPs के साथ नेगोशिएशन ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसका सेहरा टास्क फोर्स के सर है। मेरी जो मीटिंग हुई थी IMF की MD के साथ, वो आपकी रिफॉर्म्स की, आपकी स्पीड की, आपकी कमिटमेंट की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। और अब अगला मरला जो है इस हवाले से आपकी डिस्कोज हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, आपकी जो लाइन लॉसेस हैं, ये बड़े चैलेंजेस हैं। और इसको अब आपने बड़े एतमाद के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को मार्का हक और मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में कामयाबियां मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में वीडियो लिंक से खिताब। कहा मेहनत से काम करते रहे तो मजीद कामयाबियां मिलेंगी। MD IMF ने पाकिस्तानी मुआशी बेहतरी की तारीफ की। तवानाई सेक्टर में 1225 अरब के गर्दशी कर्जे के मसाइल से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। पावर सेक्टर के लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंग रुकवाएं। सदर ट्रंप से मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मुस्लिम रहनुमाओं ने सदर ट्रंप से गजा जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा करने का मुतालबा किया। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा फलस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गजा की मौजूदा सूरत हाल इस्लामी दुनिया को गहरे सदमे से दो चार कर रही है।
गजा में अमन का मंसूबा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चंद रोज में ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान, कहा कि अमरीकी सदर ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशरिक़ वस्ता और गजा के लिए अमन मंसूबा पेश कर दिया है। अमरीका ईरान से मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, ईरान से बात हो रही है लेकिन उसका मौक़िफ़ सख्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। सर्कुलर के मुताबिक सहाफ़ी, वकला और साइलिन किसी किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे। कमरा अदालत, राहदारी, वेटिंग एरिया और दफातर में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। अदालत के अंदर मोबाइल फोन सिर्फ साइलेंट मोड पर रखा जा सकेगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की पाकिस्तान के तमाम 33 डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़। मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खुसूसी लेक्चर, छोटे सूबों को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। कहा कि निचली सतह तक इख्तियारात ना देना मसाइल की वजह है, कमज़ोर गवर्नेंस मसाइल की वजह है। हमें तरक्की के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करना होगा। अगर हमने आज अपने लोगों के लिए कुछ ना किया तो 20 साल बाद हमारा मुस्तकबिल तारीख होगा। पंजाब की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी ज़हूर इलाही की 44वीं बरसी। ज़हूर इलाही को 1981 में मॉडल टाउन लाहौर में फायरिंग करके शहीद किया गया था। चौधरी ज़हूर इलाही हाउस गुजरात में खुसूसी दुआया तकरीब। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई। रियासत मुखालिफ ट्वीट और अज़मा बुखारी के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज। फलक जावेद के खिलाफ 2 मुकदमात पर समाअत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड देकर हवाले कर दिया। ताकतवर समंदरी तूफान रागासा ने ताइवान और चीन में तबाही मचा दी। हलाक अफराद की तादाद 17 हो गई, 17 लापता। हांगकांग, पुल और सड़कें बह गई। 3000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीन के सूबे ग्वांगडोंग में तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, दर्जनों दरख्त गिर गए, कई गाड़ियां तबाह। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को करप्शन स्कैंडल में सजा। पेरिस की अदालत ने लीबिया फंडिंग स्कैंडल में 5 साल कैद की सजा सुना दी। निकोलस सरकोजी को 1 लाख यूरो जुर्माना अदा करना होगा। जंडियाला शेर खान में पंजाबी के अजीम सूफी शायर पीर वारिस शाह के उर्स का आखिरी रोज। ऑल पाकिस्तान मुकाबला हीर गायकी में मुल्क भर से नामवर हीर गायक और सूफी सिंगर्स की शिरकत। जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम आज सूफी नाइट होगी। गाड़ियां तबाह। गजल गायक और क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान का यौम पैदाइश। असद अमानत अली के गीत और गजलें कानों में रस खोलती है। हुकूमत पाकिस्तान ने 2007 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया।